Class economics. Now the next topic is micro and macroeconomics. So what is microeconomics and what is macroeconomics? Basically the subject matter of economics has been divided under two parts. First is micro and another one is macroeconomics. Microeconomics also known as price theory and macroeconomics also known as income theory. So what you will study in microeconomics? Here the thing is mentioned that Adam Smith is considered as the founder of the field of microeconomics and he is also considered as a father of economics. So what is included in microeconomics, that is important. Microeconomics basically name says that micro means small. So microeconomics studies the behavior of single unit or individual unit of the economy, that is the microeconomics. Now the examples are your income of a particular of one person, production of one factory, price of one commodity, and likewise you can take example of a single unit in any case, that is the microeconomics. Now what is the macroeconomics? Macroeconomics is that part of economic theory which studies the aggregate of the economy as a whole. So macroeconomics include that it is including the aggregate of the things. When things are to be summed up, added up, that included in the macroeconomics. So let's discuss the difference. First of all, the meaning. As says that microeconomics is the part of the economic theory which studies the behavior of a single unit. For example, we are discussing the production of a one factory. We are discussing the income of one person, that is microeconomics. Now macroeconomics includes the aggregate of the things. They are not taking single unit, they are talking about the aggregate of the things. Suppose you are talking about the income, so I will take the income of all the person in the country, so that is the macroeconomics. Now if you are taking the production, so in the case of production of a factory, we are taking the production of all the factories which are in the India, which are in the economy, so that is the aggregate. मैंने कि ये टोटलिटी दिखाता है, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसका पूरा टोटल लेगा, मीन्स मार्क्स ऑफ अ पर्सन इन ए सब्जेक्ट. तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के केस में मार्क्स ऑफ ऑल द पर्सन इन ऑल द सब्जेक्ट्स. तो ये एग्रीगेट के बारे में बात करेगा, जिस बारे में भी आप बात कर रहे हो ये उसको एग्रीगेट करेगा, यानी कि उसको टोटल करेगा. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल क्या है? माइक्रो टूल का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ डिसाइड करनी है, प्राइस डिसाइड करना है, इनकम डिसाइड करनी है. इकोनॉमिक्स में तो यही है, पैसा ही है. तो टूल क्या है, क्या आप यूज़ करोगे? टूल का मतलब द थिंग्स विच यू विल यूज़ टू डिसाइड अबाउट द थिंग्स. तो यहाँ पर टूल है डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है? व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ सप्लाई? हियर डिमांड मीन्स द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज़ की डिमांड जो कि एक कंज्यूमर करता है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है. सप्लाई क्या है? सप्लाई है एक सप्लायर, यानी कि एक प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है मार्केट में गुड्स को सेल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सप्लाई. तो डिमांड और सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट की क्या है? टूल है. क्या डिसाइड करने के लिए? किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए. ना एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ओवर देयर. अब एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट का मतलब डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स बाय ऑल द कंज्यूमर. यहाँ जो डिमांड की बात कर रहा है, यहाँ ये डिमांड है कि डिमांड ऑफ वन पर्सन फॉर अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट की डिमांड कोई एक पर्सन जो करता है वो बात करता है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स. फाइन. यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि फर्म के एक प्रोडक्ट की डिमांड, हम यहाँ पर फर्म के एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात भी कर सकते हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सारी फर्म्स के सारे प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. यहाँ एक प्रोडक्ट की सप्लाई की बात हो रही है, यहाँ सारी फर्म्स जो एग्रीगेट प्रोडक्शन करती हैं ये उस सारे की सप्लाई की बात कर रही है. यानी कि यहाँ पर सारी फर्म, जो यहाँ पर एक फर्म की बात हो रही है, यहाँ एग्रीगेट ऑफ फर्म की बात हो रही है. यहाँ एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, यहाँ एग्रीगेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है. इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस है? देखो, फर्म तो एक सिंगल यूनिट होती है, इंडस्ट्री भी एक सिंगल यूनिट है. फर्म के अंदर एक समझ लो, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, फर्म के केस में आई एक फैक्ट्री, और अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री के केस में तो ग्रुप ऑफ फर्म विच आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दे आर कंसीडर्ड एज इंडस्ट्री. तो एक अगर शू की इंडस्ट्री है और सपोज करो वहाँ पर 10 फर्म्स काम करती हैं, तो अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं? एक इंडस्ट्री की. अब ये मैं सोचो कि इंडस्ट्री के अंदर 10 फर्म है, तो 10 फर्म का टोटल हुआ है, तो ये माइक्रो कैसे है? एक इंडस्ट्री की बात हो रही है ना, वो एक अलग बात है कि उसके अंदर 10 फर्म्स हैं, लेकिन है तो इंडस्ट्री एक ना. यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट के अंदर टोटलिटी ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि सारी इंडस्ट्रीज़. अब मैं अगर फिर से बात करूँ आपसे, तो एक कंज्यूमर की डिमांड और यहाँ
सारे कंज्यूमर की डिमांड सारे प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ एक कंज्यूमर की डिमांड एक प्रोडक्ट के लिए। यहाँ बात करते हैं सप्लाई की। यहाँ पर एक फर्म जो सप्लाई करता है, सपोज़ करो वो फर्म शू प्रोड्यूस करती है तो शूज़ जो वो सप्लाई करती है, या फिर एक इंडस्ट्री की सप्लाई, एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कि शू सप्लाई करती हैं। यहाँ हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, यानी कि सारी इंडस्ट्रीज जो शू सप्लाई करती हैं, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई, राइट। और दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड व्हेन द डिमांड इज़ मेड बाय ऑल द कंज्यूमर फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। हेयर डिमांड इज़ मेड बाय वन पर्सन फॉर अ प्रोडक्ट, और डिमांड इज़ मेड बाय फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की अगर डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो। लेकिन अगर सारे प्रोडक्ट की डिमांड सारे कंज्यूमर कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। इसके बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, ये टूल की हेल्प से प्राइस डिसाइड करना। जहाँ डिमांड एंड सप्लाई आपस में एक होंगी वहीं प्राइस डिसाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपको सपोज़ करो मैंने आपसे सप्लाई करी शू की और आपने डिमांड करी शू की। अब हम आपस में प्राइस डिसाइड करेंगे। एक प्राइस मैं दूंगी, सपोज़ करो 100 रुपीज़, आपने दिया 105, फिर मैंने दिया कुछ प्राइस, फिर आपने दिया कुछ प्राइस। आपस में फिर ये क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा और एक प्राइस पर हम डिटरमाइन कर लेंगे प्राइस। ओके, दिस इज़ द प्राइस, फाइन। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है इस केस में, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ये बड़ी बात है। तो ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल तय करता है इकोनॉमी के अंदर। टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, टोटल इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हुई, कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, तो ये डिसाइड करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, देखो डेफिनेटली सी बात है, माइक्रो में एग्रीगेशन यानी कि टोटालिटी की डिग्री कम है, इतना ज़्यादा इसमें टोटल नहीं होता। यहाँ पर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत ज़्यादा है। एग्रीगेशन का मतलब टोटल, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ले रहे हो तो सारे एंटायर इकोनॉमी की डिमांड ले रहे हो। यहाँ जब एग्रीगेट डिमांड ले रहे हो तो आप सिर्फ किसकी डिमांड ले रहे हो, मार्केट डिमांड। यहाँ बहुत ज़रूरी है आपको जानना व्हाट इज़ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की डिमांड जब कंज्यूमर करता है तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। और जब एग्रीगेट डिमांड का बोलते हैं, जब सारे प्रोडक्ट की डिमांड सारे कंज्यूमर करते हैं, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड। तो ये बेसिक डिफरेंस है मार्केट डिमांड में और एग्रीगेट डिमांड में। अब आप बोलोगे मैम मार्केट डिमांड में एक प्रोडक्ट की डिमांड सारे कंज्यूमर कर रहे हैं तो यहाँ सारे वर्ड आ गया, एग्रीगेट आ गया, नहीं, बट द प्रोडक्ट इज़ द वन, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। और एक प्रोडक्ट की डिमांड एक कंज्यूमर कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ बेसिक एजम्पशन क्या है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो वेरिएबल, देन वी आर एज्यूमिंग दैट मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। अगर आप माइक्रो वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बात करोगे तो उस केस में आप एज्यूम करोगे कि सारे प्रोडक्ट की डिमांड जो सारे कंज्यूमर कर रहे हैं, जो भी आपने एस्टिमेशन लिया है वो आप कांस्टेंट लोगे, बार बार उस फिगर को चेंज नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्सन की इनकम की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपने बोला कि पूरी कंट्री में इतने सब लोगों की इनकम इतनी है। एक पर्सन की इनकम है सपोज़ करो 20,000 और सारे पर्सन की इनकम जो पूरी इकनॉमी में है वो है सपोज़ करो 20 बिलियन। तो अब इतनी जो आप बात कर रहे हो 20 बिलियन, ये फिगर जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की ली है ये कांस्टेंट रहेगी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ अ सिंगल पर्सन। दोबारा सुनो, जब आप एक बंदे की इनकम की बात करोगे या कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ की बात करोगे, जैसे आप एक बंदे की इनकम की बात कर रहे हो, जैसे कि आप एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात कर रहे हो, तो उस केस में जो मैक्रो वेरिएबल होंगे उससे रिलेटेड, जैसे कि इनकम की बात कर रहे हो, अगर एक पर्सन की इनकम की बात कर रहे हो तो सारे लोगों की इनकम की जो फिगर है, जो भी अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा, आप उसको बार बार चेंज नहीं करोगे। अगर आप एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात कर रहे हो तो अब सारे प्रोडक्ट की डिमांड जो आपने प्रोडिक्ट की है या जो आपने एस्टिमेट किया है, आप उस फिगर को बार बार चेंज नहीं करोगे। तो जब माइक्रो की स्टडी करोगे तो मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, ऐसे ही जब मैक्रो की स्टडी करोगे तो माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। जब आप मैक्रो की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो पूरी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की बात कर रहे हो, आप सिंगल पर्सन की जो भी डिमांड आपने एस्टिमेट की है या जो भी डिमांड आपने लिया है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं एज्यूम करोगे। एक बार आपने बोला कि सिंगल पर्सन की इनकम 5,000 है, अब वो 5,000 ही रहेगी जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हो, जब आप सारे लोगों की इनकम निकाल रहे हो, आप पूरी कंट्री के लोगों की इनकम निकाल रहे हो, जितने भी लोग यहाँ पर है सबकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पर सपोज़ करो 100 करोड़ लोग हैं, अब 100 करोड़ लोग में से अगर आपने सिंगल पर्सन की इनकम को एज्यूम किया है तो वो कांस्टेंट रहेगी जब आप 100 करोड़ लोगों की इनकम को एज्यूम कर रहे हो। यानी कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टडी एक दूसरे के ऊपर बेस्ड होती है। सारे लोगों की इनकम तो कैसे निकलेगी, जब एक एक बंदे की इनकम लोगे तो सारे लोगों की इनकम क्या है, मैक्रो, और एक एक बंदे की इनकम क्या है, माइक्रो। तो मैक्रो माइक्रो पर डिपेंड करती है और माइक्रो ऐसे ही मैक्रो पर डिपेंड करती है। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंस।
इसका दूसरा नाम जैसे कि आपने डिस्कस किया दैट इज़ प्राइस थ्योरी, और इसमें दूसरा नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल का मतलब सिंगल इनकम, सिंगल आउटपुट। इस इंडिविजुअल वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर सिंगल वर्ड यूज़ नहीं करते, सिंगल वर्ड लिखना भी मत, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। नेशनल इनकम मतलब सभी सारे के सारे रेजिडेंट की इनकम। नेशनल आउटपुट का मतलब सारी कंट्री की प्रोडक्शन, सारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन, दैट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दिस इज द डिफरेंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। ये जो तुम्हारा इंटरडिपेंडेंस है ये तुम्हारा आता है यहाँ से बेसिक अजम्पशन, ये वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, ये बेसिक अजम्पशन से कनेक्टेड है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो देन मैक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो देन माइक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट, सो दे बोथ आर डिपेंडेंट, देयर स्टडीज डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन दैट वे। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतनी बात बतानी है, बस ये इतनी, ठीक है। दैट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क और मे बी इन 3 मार्क्स, फाइन, नॉट मोर देन दैट। जितना उसका लेंथ है क्वेश्चन का उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। ये मैं समझ लो कि ये क्वेश्चन उठा के हम 6 नंबर में दे देंगे, क्या लिखोगे इसके अंदर इससे ज़्यादा, और तुम्हारी मर्जी की बात की इकोनॉमिक्स में कोई जगह नहीं है। वट एवर रिटन इन योर बुक यू हैव टू राइट इन दैट वे, और वो सारे कीवर्ड्स आपको यूज़ करके लिखना पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत स्पेसिफिक है, आप इधर उधर की बात नहीं लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी ने लिख दिया सिंगल इनकम, सिंगल कुछ होती ही नहीं है, काटा काटा मार देंगे हम उसके ऊपर। ये क्या है, इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट। क्या है ये, नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर एग्रीगेट इनकम लिख लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेट आउटपुट लिख लोगे। जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करोगे आप पूछ के इस्तेमाल करोगे, कोई भी इस तरह का वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे विच यू हैव नॉट रेड इन योर बुक, फाइन। अपनी तरफ से इकोनॉमिक्स मत बनाओ, इकोनॉमिक्स मत बनो, बनी हुई है इकोनॉमिक्स, उसको फॉलो करो। हियर वन मोर क्वेश्चन अराइजेस दैट माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्सेस क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है कि अगर आप जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑनलाइन क्लास इज़ वेरी गुड फॉर अस, बट जब आपके जो इतने इनडिसिप्लिन कोई ऐसा समझ लो कि एंटी सोशल एलिमेंट उसी ऑनलाइन क्लास को डिस्टर्ब करता है और इस तरह से अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, तो उस केस में वो क्या हो जाती है, उस केस में वही चीज़ गलत साबित हो जाती है। तो इस केस इसका मतलब ये है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अगर एक सिचुएशन में बात करते हो तो वो चीज़ ठीक है और दूसरी सिचुएशन में बात करते हो तो वही चीज़ गलत हो जाती है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस क्या है, देखो पैराडॉक्सेस का मतलब होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने सेविंग का। सेविंग इज़ अ वेरी गुड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। अगर सिंगल पर्सन की बात करते हो सेविंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो सेविंग इज़ नॉट ए गुड थिंग। इन इकोनॉमी ऑल द पीपल शुड स्पेंड अ लॉट सो दैट प्रोडक्शन कुड बी पॉसिबल। खर्चा करोगे तभी तो प्रोड्यूसर और चीज़ बनाएगा। Suppose there is a Diwali season and nobody is purchasing crackers, sweets or any lightning, then what will happen? Producer will be in loss and they will retrench the employees and they will not carry on any production. So saving, सिंगल पर्सन की बात करें तो सेविंग अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वही सेविंग की बात करते हैं पूरी इकोनॉमी के लिए तो सेविंग उस केस में क्या हो जाती है, सेविंग इज़ नॉट गुड फॉर द होल इकोनॉमी। सो दैट इज़ द पैराडॉक्स स्टेटमेंट। अब आप बोल नहीं सकते सेविंग ठीक है कि सेविंग गलत है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, फाइन। बस इसमें आपका यही बात इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब कनेक्टेड है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी दैट हैज़ बीन now central problem of an economy, what are the central problem of an economy, that is what to produce, how to produce and for whom to produce. These are the central problem of an economy that you have to discuss. It's very important, and these are the problem related to allocation of resources. Suppose the question come, what are the problems of allocation of resources, then you will write what to produce, how to produce and for whom to produce. Now what to produce, what do you mean by the central problem what to produce? Look, what to produce is a problem that is related to what or which type of goods and services are to be produced and in which quantity. So this problem has two aspects, that what possible commodities are to produce and the next in how much to produce. कितना प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करें भाई, शुगर प्रोड्यूस करें, क्लोथ प्रोड्यूस करें, वीट, what is to be produced and in which quantity to fulfill the demand of your country or for the rest of the world even if you want to export. So now the next thing is how to produce, कैसे प्रोड्यूस करें, which selection of technique इज़ टू बी डिसाइडेड अंडर हाउ टू प्रोड्यूस, कि कौन सी टेक्निक को सेलेक्ट करें। इसमें बेसिकली 2 टेक्निक डिस्कस की हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर को एक्सप्लेन कर दोगे, दैट इज़ मोर लेबर लेस कैपिटल, एंड कैपिटल दैट इज़ मोर कैपिटल लेस लेबर। तो विच टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी यूज, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। ये तुमने इसमें बताना है, ठीक है। यू कैन गिव द एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर बता रखा है कि क्या प्रोड्यूस करें, एग्जाम्पल दे दोगे राइस वीट, यहाँ प्रोड्यूस क्या कौन सी टेक्निक यूज़ करें, तो लेबर और कैपिटल इंटेंसिव के बारे में बता दोगे, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करनी है, विच टाइप ऑफ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फॉर whom यू वांट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ योर गुड्स. यहाँ पर आप जब ये फॉर whom टू प्रोड्यूस करोगे का डिसीजन लोगे तो यहाँ पर आप बताओगे कि पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो कि रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये प्रॉब्लम है दैट इज़ कैटेगराइज अंडर 2 हेडिंग. आप 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में बात कर सकते हो. फर्स्ट वन इज़ द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स हाउ मच फॉर whom यू आर प्रोड्यूसिंग. देखो जो भी तुम्हारा फॉर whom टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो हाउ दे कैन परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज. सो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप बात करते हो नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल लाइक पुअर, मिडल, लोअर मिडल एंड रिच. इस तरह से डिफरेंट सेक्शन या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर इनकम कैसे डिवाइडेड है इस बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर whom टू प्रोड्यूस का कोई फ़ायदा नहीं व्हेन द पीपल आर नॉट हैविंग मनी टू परचेज दैट. तो यहाँ पर मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. सेकेंड इज़ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कैसे इनकम डिवाइडेड है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में. तो आप चाहो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. आप चाहो तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात कर लो. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें क्या आता है, इसमें आता है मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, रिच पीपल और एनी अदर डिफ्रेंसिएशन, एनी अदर बाइफर्केशन अंडर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आप जैसे मर्जी इनको कैटेगराइज करोगे. ठीक है, बेसिकली हम मनी के बेस पर ही करते हैं. सो देर इज़ अ रिच, पुअर, मिडिल इनकम ग्रुप पीपल, फाइन, देन लोअर अपर मिडल ग्रुप, लोअर मिडल ग्रुप. सो सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर कमिंग अंडर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फाइन, तो ये आपको फॉर whom टू प्रोड्यूस में करना है. नेक्स्ट टॉपिक यू आर डूइंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. देखो ऑल द थिंग्स आर इन स्कैरसिटी, सारी चीज़ें स्कैरसिटी में है, ऐसा कुछ नहीं है कि अबंडेंस में है सारी चीज़ें. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सपोज करो आपके पास 500 रुपीज़ है. नाउ 2 थिंग यू आर टू परचेज, इधर यू कैन परचेज द आइसक्रीम और यू कैन गो फॉर lunch. So either you want to have the ice cream and then next thing is you can spend your money for lunch. So now you are to choose that you want to have the ice cream or lunch. Fine, in that very way, suppose you are choosing to go for lunch. So what is the opportunity cost of lunch is you're sacrificing ice cream. So this is the point that opportunity cost is the cost of next best alternative. Again I'm assuming that suppose you are having 20,000 rupees and your 2 option, either you can spend on an educational camp or you can go for some foreign trip, some so $20,000 you are having and you are having 2 option कि या तो आप इसको अपने एजुकेशनल ट्रिप पे खर्च करो, कोई आपने एजुकेशन प्रोग्राम पे खर्च करो, और यू कैन गो फॉर सम फॉरेन ट्रिप. तो आप कहाँ पर खर्च करोगे इसको, सपोज करो यू आर चूजिंग टू स्पेंड ऑन फॉरेन ट्रिप. सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ फॉरेन ट्रिप, दैट इज़ स्पेंडिंग ऑन योर एजुकेशनल प्रोग्राम. जो चीज़ आप सेक्रीफाइस करते हो वो उस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है जो आप चूज़ करते हो. आपके पास सपोज करो 5 करोड़ रुपीज़ हैं और आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर यू वांट टू परचेज हाउस इन 14 सेक्टर और इन मॉडल टाउन. सपोज करो आप 14 सेक्टर में हाउस परचेज करना चूज़ करते हो, तो 14 सेक्टर में हाउस परचेज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, हाउस परचेजिंग इन मॉडल टाउन. जो आप सेक्रीफाइस करते हो वो उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है जो चीज़ आप चूज़ करते हो. आपके पास 2 फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम, आपको उन दोनों के साथ घूमने जाना है. सपोज यू आर चूजिंग राम टू बी विद यू. सो व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राम, दैट इज़ द श्याम. तो श्याम जो आपने जिसको आपने क्या किया, जिसको आपने नेग्लेक्ट किया, जिसको आपने छोड़ दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है उस चीज़ की जो आपने चूज़ की. So that is the opportunity cost. That is why written opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. जो तुम छोड़ देते हो वो बन जाती है, that is the cost of the thing you have chosen. जो तुम चूज़ करते हो उसकी opportunity cost बन जाती है cost of next best alternative foregone. या opportunity cost किसकी चूज़ कर रहे हो, opportunity cost के बारे में, किसकी opportunity cost के बारे में बात कर रहे हो, the thing which you have chosen. The thing which you have chosen. What is the opportunity cost of thing you have chosen? Is the cost of next best alternative. दूसरा जो alternative है जो आपने छोड़ दिया, हो सकता है 4 alternative हो, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, next best. First, suppose करो you are having 4 friends A, B, C, D and you have chosen A, and if A is not there then definitely you will choose B, and if B is not there you will choose C, if C is not there you will choose D. So
इन दैट केस इफ़ यू आर चूजिंग ए देन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, बी ना, तो बी इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए। अभी आप यहाँ नहीं बोलोगे कि सी एंड डी ऑल्सो, जो नेक्स्ट बेस्ट होता है बस वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है उस चीज़ की जो आप चूज़ करते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखो ये जो पीछे आपने भी टॉपिक किया ना, इसके अंदर मैंने आपको मार्क कर दिया, दिस इज द डेफिनेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दीज आर द एग्जांपल यू कैन राइट ओवर देयर। क्वेश्चन कैन कम एज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, you will write that there is a scarcity of resources, that is why opportunity cost is this, the cost of next best alternative for goal। और ये एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो इसमें। examples are given, many examples are given to make you understand. I have given you many example for this situation and many example also given in your book. Fine, you can write one or two example. In the exam you can write only one example, no need to write down many more than one example to explain your topic. Now production possibility frontier, what is this? Production possibility frontier, that is also known as production possibility curve. Fine, that is also known as production possibility boundary. ये सारे नाम ध्यान रख लो, ठीक है, और write down in your copy whatever I just have said to you. Production possibility frontier, production possibility curve, production possibility boundary. So what is that? देखो production possibility curve का मतलब आप डेफिनेटली कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर कुछ ड्रॉ कर रहे हो, कर्व है ये, तो कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो एक्स और वाई एक्सिस होंगे इसके अंदर, ठीक है, जिसको लेकर आप कुछ ड्रॉ करोगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली बताता है कि व्हाट इज़ योर पोटेंशियल, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी यू कैन हैव विद द रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की। डेफिनेटली दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो हम यहाँ प्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर बेसिकली क्या आता है कि आपके पास सपोज करो रिसोर्सेज हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की एक लिमिटेशन है कि यू कैन शो ओनली 2 प्रोडक्ट एट ए टाइम, यू कांट शो मोर देन 2 प्रोडक्ट। 2 ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो, उससे ज़्यादा के बारे में बात नहीं कर सकते। सपोज यू आर हैविंग रिसोर्सेज एंड you are to produce 2 प्रोडक्ट। So if you are talking about production possibility curve, so what are the possibility of production of those 2 product when you are having resources and there is a limit, that there is a scarcity of resources। resources की scarcity है, ऐसा नहीं है कि आपके पास resources abundance में है। तो उस केस में आपको डिसाइड करना है कि कौन से टाइप के गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे और कितनी आप प्रोड्यूस करोगे। डेफिनेटली अगर एक प्रोड्यूस करोगे तो दूसरी सेक्रीफाइस ज़रूर करेगी। वाई, इफ़ वन गुड इज़ प्रोड्यूस एंड वाई अदर इज सेक्रीफाइसिंग ड्यू टू द scarcity of resources। So while discussing the production possibility curve, the thing you are to remember that there are only 2 commodities, and the second thing is one commodity is sacrificing for another. One commodity, production of one commodity, sacrifice for another, reason being that there is a scarcity of resources. The resources are not in abundance, there is a scarcity of resources over there. Fine, so these are the assumption you have to take while discussing the production possibility curve or frontier, and the resources are to fully utilize. As we also said you that always use your resources to the fullest. So now there is an assumption that resources are fully utilized. Resources are not to be wasted, they are fully and efficiently utilized. This is there. And resources, whatever resources are there, what type of resources, I mean, if you're talking about the resources, then what are the resources? Suppose you are doing production, the resources can be coal, resources can be water, resources can be anything, raw material which is to be used for making the production of goods and services. So these are the resources. Money can be the resource. So these are the resources. Whatever you are having for for production of goods and services, these are the resources. Fine. Suppose resources can be in the terms of wood, coal, iron, water, electricity, and anything which you will use to make your final product, that is your resources. So resources here are efficiently and fully utilized. That is these are the assumption, you can say these are the assumption of production possibility curve. Assumption means basically assumptions over there means you are assuming the things and then you are go on for the further activity. So you are having the assumption that your teachers are good, your parents are good, everybody around you
they are good to you, they want to do the welfare for you, that is why you are living with them. Fine, this is the assumption. As we are assuming that you are a good student you are having a good moral value, so that is why we are emotionally attached with you, we are doing effort for you, and we are concerned with you. So that is the assumption. This is the assumption in everybody's life. कुछ ना कुछ आप एज्यूम करते हो और उसके बाद आप फर्दर एक्टिविटी करते हो. इकोनॉमिक्स में भी आपको हमेशा अजम्पशन नज़र आएंगी. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए भी अजम्पशन है. जो हम ये अजम्पशन हम एज्यूम कर रहे हैं चीज़ें ऐसी हैं, तो हम उसके लिए आगे बात कर रहे हैं. And then the next assumption is that the resources are fixed, as I told you. The resources the next thing is the resources can be transferred. ऐसा नहीं है कि resources सिर्फ एक ही चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं. The resources can be transferred from one product to another. एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ हम रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है, टेक्नोलॉजी यूज हेयर दैट इज़ कांस्टेंट. जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ कांस्टेंट. ये नहीं कि अभी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो सपोज़ करो 1 करोड़ की, अब आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो सपोज़ करो 5 करोड़ की, एंड दैट इज़ अपग्रेडेड एंड मॉडर्नाइज. तो ऐसा नहीं है. आप टेक्नोलॉजी का यूज़ सेम रखोगे सिचुएशन के अंदर, आप टेक्नोलॉजी के यूज़ को चेंज या टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ कर रहे हो उसको चेंज नहीं करोगे. सो दैट इज़ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग सपोज व्हीट और वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग गन. कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी उस केस में कॉन्स्टेंट ही रहेगी. ठीक है. So that is the production possibility frontier, and these are the assumption also given in your book also. Here you can see the assumption, like that is on page number 1.10. Here are the assumptions of production possibility curve given over there. Fine. From there you can learn your assumption of the production possibility curve. Now what is production possibility curve? This is the definition given over there. This is the definition. Production possibility frontier or curve defined as the graphical presentation of possible combination of two goods that can be produced with the given resources and technology. You cannot skip even a single word out of that. That is why I am reading this from your book. If you will skip any of the word, then you will lose your marks. So production possibility frontier refers to graphical. ये graphically present करता है, यानी कि ये curve है तो ग्राफ में बात करता ज़रूर है. ये ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन. क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं रिसोर्सेज के साथ? 2 गुड्स के लिए 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. जो भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी आपके पास गिवन है, उस रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से आप 2 गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हो, और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. अभी देखो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाएंगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ दिस. हियर द टेबल इज़ गिवन इन योर बुक. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस टेबल. There is a possibilities A, B, C, D, E. These are the possibilities. And सबसे पहले हम बात कर रहे थे there can be 2 प्रोडक्ट. तो कौन से 2 प्रोडक्ट हैं? एक गन है और दूसरा क्या है? बटर. फाइन. नाउ क्या है बात, देखो कि एक प्रोडक्ट से जब दूसरे प्रोडक्ट में रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करोगे तो आप ऐसे नहीं कि कभी इसकी प्रोडक्शन कर रहे हो कभी इसकी. आप सपोज कर रहे हो गन की प्रोडक्शन, ठीक है, और आप गन से रिसोर्सेज बटर की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हो. This is the point that you are transferring the resources from gun to the production of butter. आपका पहला कॉम्बिनेशन है व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग गन 21 यूनिट्स आप गन प्रोड्यूस कर रहे हो और बटर कितना प्रोड्यूस कर रहे हो? 0 से आपको स्टार्ट होना होगा. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आप एक्सट्रीम सिचुएशन के बारे में बात करते हो, 0 के बारे में बात करते हो. ठीक है. सो एज यू आर ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गन टू बटर, सो व्हेन यू विल ट्रांसफ़र द प्रोडक्शन रिसोर्सेज फ्रॉम गन टू बटर, तो आप बटर की प्रोडक्शन को बढ़ाओगे 1-1. पहले सपोज करो 0 है, फिर 1 यूनिट, फिर 2, फिर 3, ताकि आप हर एक यूनिट में मार्जिन निकाल सको, हर एक यूनिट में देख सको कि हाउ मच गन इज़ बीइंग सेक्रीफाइस फॉर मेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ बटर. कितना गन की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस हो रही हैं बटर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. अब यहाँ पर गन जो है वो देखो, गन सबसे पहले गन सेक्रीफाइस हो रही है यहाँ पर. देखो 1 यूनिट की गन सेक्रीफाइस हो रही है, 1 यूनिट गन सेक्रीफाइस हो रही है यहाँ पर, एंड यू आर मेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट. 1 यूनिट बटर की बनाने के लिए आप 1 यूनिट गन की सेक्रीफाइस कर रहे हो. फिर एक और यूनिट बटर की बन रही है. कैसे बन रही है? 2-1. कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो? 2 यूनिट गन की सेक्रीफाइस हो रही है. उसके बाद फिर 3 यूनिट गन की सेक्रीफाइस हो रही हैं, 4 यूनिट हो रही हैं, फिर 5 यूनिट हो रही हैं, फिर 6 यूनिट हो रही है. इसी तरह से सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है. लेकिन प्रोडक्शन बटर की कितनी बढ़ रही है? सिर्फ वन. तो जो इंक्रीज़ हो रहा है बटर में, दैट इंक्रीज हैज़ बीन बाय ऑलवेज 1 यूनिट, बट द सेक्रीफाइस मेड बाय द
gun by sacrificing the gun that has been increasing, sacrifice has been increasing 1 2 3 4 5 6 for every additional unit you have to sacrifice more. हर एक और बटर बनाने के लिए आपको ज़्यादा गन का sacrifice करना पड़ रहा है. सो दैट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. यहाँ पर आप ये जो sacrifice और गेन कर रहे हो उसका आप यहाँ नोट डाउन भी कर सकते हो कि देखो चेंज इन गन यानी कि गन के अंदर जो चेंज हो रहा है और चेंज इन बटर जो कि बटर के अंदर चेंज हो रहा है. 1 gun has been sacrificed for 1 unit of butter. 2 gun has been sacrificed of 1 unit of butter. 3 guns has been sacrificed for 1 unit of butter and 4 gun has been sacrificed for 1 unit of butter. 5 units of gun has been sacrificed for 1 unit of butter and 6 unit of gun has been sacrificed for 1 unit of butter. इस तरह से आप ऐसे एक रेशो बना सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि how much unit of one product has been sacrificing at which rate for making additional unit of another product. How much unit of gun has been sacrificed for making an additional unit of butter. इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन गन अपॉन चेंज इन बटर, जैसे कि इस वाले टेबल में अप्लाई होता है. अदरवाइज़ क्या है, चेंज इन यूनिट लॉस, जो यूनिट आपकी लॉस होती है लूज़ होती है वो यहाँ पर आती है. चेंज इन यूनिट्स गेन, जो यूनिट आपकी गेन आती है वो आपकी क्या बनती है, डिनोमिनेटर, और जो यूनिट आपकी लूज़ होती है या लॉस में जाती है वो आपकी क्या होती है, न्यूमिनेटर. तो ये आपका फॉर्मूला है इसका. ठीक है, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाउ मच यूनिट हैज़ बीन सेक्रीफाइस्ड. तो सिर्फ यहाँ पर सेक्रीफाइस यूनिट लिखोगे 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बटे में क्या लिख दोगे, यानी कि डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों यूज़ करोगे. यहाँ पर सिर्फ क्या बात करोगे, हाउ मच हैज़ बीन सेक्रीफाइस, जो कितना सेक्रीफाइस हो रही है गन, बस इसमें वही बात लिखोगे. यानी कि बेसिकली मैं बताऊँ कि तो इसमें चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस, बस यही लिखोगे और कुछ नहीं. फिर यहाँ चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन यूनिट गेन, ये लिखोगे. क्योंकि रिसोर्सेज गन के यानी कि पैसा और जो भी रिसोर्सेज हैं वो गन नहीं बना रहे, वो क्या बना रहे हैं, बटर. तो बटर बना रहे हैं, इसलिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, गन. गन सेक्रीफाइस कर रही है किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से. एज यू आर नोटिसिंग गन इज सेक्रीफाइसिंग इन इंक्रीजिंग रेट. क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज इकोनॉमी को सिर्फ गन बनाना आता है, बटर बनाना नहीं आता. तो बटर बनाना क्योंकि उसको नहीं आता, तो जब वो बटर बनाना स्टार्ट करेगी, देखो यहाँ पर ज़ीरो प्रोडक्शन है, इसका मतलब इकोनॉमी में कभी बटर नहीं बना. तो आप अगर बटर बनाना शुरू करोगे तो आपको गन इस तरह से सेक्रीफाइस. तो इस तरह से आप देखते हो कि कितना यूनिट गन का सेक्रीफाइस करती है बटर के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो बटर की प्रोडक्शन है वो ज़ीरो है. जब आपको कोई चीज़ नहीं आती, मीन्स यू आर एट ज़ीरो, व्हेन यू विल स्टार्ट देन यू हैव टू सेक्रीफाइस मोर. जैसे कि एक सब्जेक्ट की बात करें, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता, यू आर स्टार्टिंग दैट सब्जेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट इन दैट सब्जेक्ट. तो क्या होता है, आपको अपना टाइम बहुत ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है, आउटपुट उतनी नहीं आती. बट व्हेन यू विल बिकम स्पेशलाइज इन दैट सब्जेक्ट, तो आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करके भी बहुत ज़्यादा आउटपुट वहाँ से ले लेते हो. तो सेम ऐसे ही है, इकोनॉमी को बटर बनाना नहीं आता, देखो ज़ीरो प्रोडक्शन है, यहीं से पता लग रहा है. तो जब इकोनॉमी बटर बनाना शुरू करती है तो उसको ज़्यादा गन सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. सबसे पहले एक एक यूनिट बनाने के लिए उसको हर यूनिट पे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बिकॉज इकोनॉमी इज़ नॉट से दैट एक्सपर्ट इन मेकिंग बटर. जब एक्सपर्ट हो जाएगी बटर में तो इतना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा. हो सकता है सेक्रीफाइस 1:1 करे कि 1 यूनिट बटर की बनेगी, 1 यूनिट गन की सेक्रीफाइस करेगी, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन अभी तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि इकोनॉमी इज़ एट ज़ीरो लेवल ऑफ बटर, दे आर नॉट नोइंग हाउ टू प्रोड्यूस बटर, यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं, और इसीलिए गन ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही है, बिकॉज इकोनॉमी इज़ नॉट परफेक्ट इन मेकिंग बोथ द प्रोडक्ट. दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं उसको नहीं आते. यहाँ 21 गन है, इसका मतलब गन की प्रोडक्शन कर रही है, तो इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस गन, बट इन द केस ऑफ बटर इकोनॉमी हैज़ टू लर्न. सो दैट इज़ वाई इन द इकोनॉमी व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग बटर देन मोर सेक्रीफाइस फ्रॉम गन इज़ टू बी देयर. ज़्यादा सेक्रीफाइस गन का इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर धीरे धीरे बनाना एक तरह से टेक्नोलॉजी के साथ बनाना सीख रहे हो, सेम रिसोर्सेज के साथ बनाना सीख रहे हो. सो दिस इज़ द टेबल यू आर टू फॉलो. अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा. आप एक्स एक्सिस पे क्या दिखाओगे, एक्स एक्सिस पे हमेशा बटर दिखाओगे, यानी कि हमेशा वो दिखाओगे जो क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो. जो प्रोडक्ट आपका गेन कर रहा है वही दिखाओगे, और गेन एक ही तरफ रखोगे, ये नहीं कि कभी ये गेन कर रहा है कभी ये गेन कर रहा है. हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी को गन बनाना आता है और गन से रिसोर्सेज कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बटर की तरफ. तो अब इस केस में इकोनॉमी के अंदर क्या चीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, बटर की. क्या चीज़, कौन सा प्रोडक्ट गेन कर रहा है, बटर. तो बटर को कहाँ दिखाओगे, एक्स एक्सिस पे, सॉरी. और जो प्रोडक्ट तुम्हारा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कहाँ दिखाओगे, जो तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग प्रोडक्ट है उसको कहाँ दिखाओगे, यानी कि गन को कहाँ दिखाओगे, वाई एक्सिस पे. ये ध्यान रखना, अगर आपने इसको अपोजिट कर दिया तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा. तो अब क्या लोगे, बटर के लिए देख लो कितनी यूनिट है प्रोडक्शन की, 1 2 6 है, तो आपने ले लिया 0 1 2 3 4 6 5 6. और यहाँ पर आपका क्या है,
यहाँ पर है गन कितनी है 0 to 21, तो आप इस तरह से अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लो वाई एक्सिस पे। आप स्टार्ट कर सकते हो 2 से स्टार्ट कर सकते हो, इसने 3 से स्टार्ट किया हुआ, चलो 3, 6, 9, 12, ज़रूरी नहीं आप जैसे मर्जी आप अपना डिवीज़न ले सकते हो। सबसे पहले क्या है 0, सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है 0, 21। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या सारे कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं? नहीं, इधर दिस कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस और दिस, या फिर ये 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 इस तरह से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं कि पहले कॉम्बिनेशन में ऐसा हो रहा है, जब ये सेक्रीफाइस करेगा तो ये वाला प्रोडक्शन होगा, जब ये सेक्रीफाइस और करेगा तो फिर ये कॉम्बिनेशन अराइज होगा। तो इसी तरह से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। तो जब 0 यूनिट बटर की है तो गन कितनी है 21, पहला पॉइंट ये रहा। उसके बाद जब फर्स्ट यूनिट बटर की है तो गन कितनी है 20, ये ले लिया इसके बीच में। जब 2 यूनिट बटर की है तो गन कितनी है 18, ये ले लिया दूसरा पॉइंट। 3 यूनिट विद 15 एंड देन 4 यूनिट विद 11, 5 यूनिट विद 6 एंड 6 यूनिट विद 0, यहाँ पॉइंट लगेगा। और आप क्या कर दोगे, यू विल जॉइन ऑल द पॉइंट्स एंड मेक अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये A to G, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। फाइन, सो दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यू आर टू मेक। और आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, यू विल आप दिखाओगे दैट, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बता रहे हो बटर दिखा रहे हो, यहाँ पर गेनिंग कमोडिटी दिखा रहे हो, इतना काफ़ी है। यू विल शो दैट A to G इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फाइन, एंड हेयर द क्वांटिटी ऑफ गन हैज़ बीन सेक्रीफाइसिंग फॉर प्रोड्यूसिंग द यूनिट ऑफ बटर। ठीक है, ये आप डायग्राम बनाओगे, टेबल बनाओगे, एक्सप्लेनेशन आई विल टेल यू इन योर नेक्स्ट video. Fine, in the same way you will write that production possibility curve is making with the use of 2 commodities, one is to be shown on x axis, other is to be on y। गेनिंग वाली को x पे दिखाओगे और सेक्रीफाइसिंग वाली को y पे दिखाओगे। ठीक है, तो ये आप बताओगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। और भी है इसके बारे में बात बताने के लिए। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ अभी आप टेबल बनाओगे और डायग्राम बनाओगे एंड अजम्पशन लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। सो व्हाट आई हैव बीन कवर्ड अंडर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डेफिनेशन, assumption, table and diagram. Fine, and the reason that why one product is sacrificing and sacrificing is in increasing rate। ये देखो 1 2 3 4 5 6 increasing rate में sacrifice हो रहा है। ओके।